Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject estimation and costing. So far we have discussed bar bending schedule for beam and column. Today we are going to discuss bar bending schedule for slab. So primarily slabs are classified into two types, one-way slab and two-way slab. One-way slabs. The slabs in which ratio of longer span to shorter span is greater than or equal to 2 is known as one-way slabs. So this is our longer span and this is our shorter span. So longer span का ratio of longer span to shorter span अगर greater than और equal to 2 हो गया, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का रेशो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो वो क्या है हमारा वन वे स्लैब. These slabs are also called edge supported slabs. In these slabs, bending takes place only along the shorter span. Therefore, the main reinforcement क्रैंक बार. सो क्रैंक बार क्या है हमारा बेंट अप बार. हम उसे क्रैंक बार भी कह सकते हैं और बेंट अप बार भी कह सकते हैं. मेन reinforcement is provided along the shorter span and distribution steel is provided along the longer span. So क्या बोल रहा है, ये तो हमारा होता है लॉन्गर स्पान एंड दिस इज़ अवर शॉर्टर स्पान. इस वन वे स्लैब में बेंडिंग सिर्फ कहाँ आती है, सिर्फ शॉर्टर स्पान पे. इसलिए हमारा जो शॉर्टर स्पान है उस पे हमने ये बेंट अप बार, जो कि हमारे स्लैब का मेन रीइंफोर्समेंट है, इसलिए हमने शॉर्टर स्पान पे के अलॉन्ग प्रोवाइड किया है हमारा बेंट अप बार. और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग प्रोवाइड की गई है. दिस मेन reinforcement along shorter span, distribution steel along longer span. So ये हमारा बेंट अप बार हो गया जो हमने शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग प्रोवाइड किया, और ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो कि हमने लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग प्रोवाइड किया. बेंट अप बार्स आर बेंट अप एट 45 डिग्री. सो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बेंट अप बार में हाइट ऑफ बेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम लेंथ ऑफ बेंट अप बार कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारा स्लैब है, दिस इज़ लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन. हमारे पास कौन सी स्टील है, एक मेन रीइंफोर्समेंट जिसमें हमारा बेंट अप बार आ जाता है, और दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, distribution reinforcement. Okay, now main reinforcement. Main reinforcement is provided parallel to shorter span. ये हो गई हमारी शॉर्टर स्पान, तो इसके पैरेलल हो जाती है हमारी मेन reinforcement. Main reinforcement is provided to resist the bending moments due to transverse loads coming on the slab. Distribution steel is provided in a direction perpendicular to the direction of main reinforcement. These bars are tied above the main bars. Distribution steel हमने मेन बार के परपेंडिकुलर प्रोवाइड की गई है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील किसके ऊपर टाई की गई है, मेन बार के ऊपर. मेन बार मतलब क्रैंक बार और बेंट अप बार. So now prepare bar bending schedule for a simply supported one-way slab with the following data. Size of room equals to 3 meter into 6 meter. 3 meter is the shorter span and 6 meter is the longer span. This is 3 meter and this is 6 meter. Longer span equals to 6 meter and shorter span equals to 3 meter. Thickness of slab is given 150 mm. Bearing on walls is given 150 mm. Thickness of walls is given 300 mm. Main reinforcement 12 mm phi
HYSD bars at 150 mm center to center with alternate bars bent up at L/7. सो मेन रीइंफोर्समेंट के लिए क्या कर रहा है कि मेन रीइंफोर्समेंट में जो हमारे बार्स हैं वो 12 mm डाया के HYSD बार्स हैं, और क्या बता रहा है एट 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए विद अल्टरनेट बार्स। मतलब क्या है, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसमें ये हमारा जो मेन बार है उसके बाद एक स्ट्रेट बार दिख रहा है आपको, नॉट दिस वन जो ऊपर से प्रोवाइड किया है, बल्कि ये वाला जो पहले बेंट अप बार है एक, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट बार दिख रहा है, फिर एक बेंट अप बार है, फिर एक स्ट्रेट बार है। सो बेंट अप बार और स्ट्रेट बार की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 150 mm। Distribution steel equals to 10 mm phi, HYSD bars at 200 mm center to center. This is our distribution steel. इसका क्या बोला है, center to center between spacing between distribution steel is 200 mm and dia of these bars is 10 mm. Now moving on, let's assume clear cover to main reinforcement 20 mm and cover to bars equal to 20 mm. Calculation of length of various bars. First we are going to calculate for main reinforcement. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्लैब में हमारे पास दो रीइंफोर्समेंट है, मेन रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट में हमारा क्या आ जाता है, बेंट अप बार और स्ट्रेट बार, और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट में क्या आ जाता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, दीज आर स्ट्रेट बार्स। ओके, सो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। सो मेन reinforcement is along shorter span. Clear span of slab along shorter span equals to 3000 mm. This is given in the question. Effective span of slab along shorter span, इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास, clear span plus width of one bearing. Clear span is 3000 and width of one bearing is given in the question 150 mm. This, okay, so 3000 plus 150 equals to 3150 mm. This is the effective span of slab along shorter span. Total length of slab along shorter span कितनी हो जाएगी, clear span plus दोनों साइड की bearing, तो वो आ जाती है हमारी 3300 mm. अब हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट बार की लेंथ। सबसे पहले स्ट्रेट बार की करेंगे, उसके बाद बेंट अप बार की, क्योंकि हमें पता है मेन रीइंफोर्समेंट में दो बार्स होती है, एक स्ट्रेट बार और एक बेंट अप बार। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैसे आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब है उसमें से हम एंड कवर्स डिडक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। सो 3300 माइनस 2 इंटू दोनों साइड का एंड कवर। ओके, एंड कवर हमने एज्यूम किया है 20 mm। सो ऐसे आ जाती है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। देन नंबर ऑफ मेन reinforcement bars required equals to total length of slab along longer span upon center to center spacing of main steel plus 1. Substituting the values, length of longer span क्या थी 6000, और टोटल लेंथ कैसे आ जाएगी, दोनों साइड की बेयरिंग ऐड करके, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मेन स्टील का क्या गिवन है 150 mm। तो ऐसे मेन रीइंफोर्समेंट में टोटल नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट कर लिए, कितने आ गए 43। ओके, सो ये 43 बार्स है हमारे मेन रीइंफोर्समेंट में। ये वाली मेन रीइंफोर्समेंट में टोटल नंबर ऑफ बार्स 43 आ गए, जिसमें से 22 बार्स हमारे स्ट्रेट होंगे और 21 बार्स हमारे बेंट अप होंगे। ओके, ऑल्टरनेट प्रोवाइड है, आधे स्ट्रेट बार्स होंगे, आधे बेंट अप बार होंगे। ओके, 43 बार्स आ गए टोटल, और 22 बार्स आर स्ट्रेट एंड 21 बार्स आर बेंट अप। अब हम बात करते हैं बेंट अप बार की। सो अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कैसे हम सबसे पहले हाइट ऑफ बेंड कैलकुलेट करते हैं।
सो हाइट ऑफ बेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब -2 इंटू एंड कवर माइनस डाया ऑफ बेंट अप बार। टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब हमें गिवन है 150 mm, क्लियर कवर वी आर एग्ज्यूमिंग 20 mm एंड डाया ऑफ बेंट अप बार इज गिवन 12 mm। ओके, सो ये आ जाता है हमारा हाइट ऑफ बेंड 98 mm। लेंथ ऑफ बेंट अप बार कैसे होगी कैलकुलेट, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस twice of 0.42 h. h is the height of the bend. Substituting the values we get the length of bent up bar. So हमने मेन reinforcement में स्ट्रेट बार की लेंथ भी कैलकुलेट कर ली और बेंट अप बार की लेंथ भी कैलकुलेट कर ली है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने कौन से स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड किया है, लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग। ओके, सिमिलरली सेम स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। लॉन्गर क्लियर स्पान ऑफ स्लैब अलॉन्ग लॉन्गर स्पान गिवन है 6000 mm, क्वेश्चन में गिवन है। इफेक्टिव स्पान ऑफ स्लैब अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ वन बेयरिंग, सो वो आ जाता है हमारा 6150 mm। टोटल लेंथ ऑफ स्लैब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर स्पान में दोनों साइड की बेयरिंग ऐड कर देंगे। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, लेंथ अब हम इस स्ट्रेट बार की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैसे आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब -2 इंटू एंड कवर, तो दोनों साइड के एंड कवर माइनस कर देंगे हम टोटल लेंथ में से, तो क्या आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, तो वो आ जाती है हमारी 6260 mm। अब बार्स कैलकुलेट करेंगे कि कितने बार्स हमने यहाँ पे ये कितने बार्स लग रहे हैं, कितने बार्स प्रोवाइड किए गए हैं किस स्पैन के अलॉन्ग, लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग। तो नंबर ऑफ बार्स हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्लस 1। टोटल लेंथ कितनी आई, टोटल लेंथ क्या हो गई हमारी शॉर्टर स्पान की 3300 mm, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमें गिवन थी 200 mm डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए। मेन स्टील में वहाँ पे 150 थी और यहाँ पे है हमारे पास 200 mm प्लस 1, सो वी गेट 18 बार्स। तो 18 बार्स डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग। सो प्रोवाइड एट लास्ट वी प्रोवाइड एडिशनल बार्स टू सपोर्ट बेंट अप बार्स ऑन बोथ साइड। तो बेंट अप बार्स को सपोर्ट करने के लिए हम एडिशनल बार्स प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड्स से। तो एडिशनल बार्स की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, L/7 अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। ये L क्या है, L है इफेक्टिव स्पान अलॉन्ग शॉर्टर स्पान, इफेक्टिव स्पान ऑफ स्लैब अलॉन्ग शॉर्टर स्पान, तो ये आ जाता है हमारा 3150 mm। दिस इज small l effective span। Then center to center spacing is 200 plus 1, so additional bars calculated is 4 additional bars provide करने वाले हैं हम distribution steel में। So this is our bar bending schedule। नाउ हम क्या क्या मेंशन करेंगे, मेन बार, मेन रीइंफोर्समेंट मेंशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स मेंशन करेंगे। मेन रीइंफोर्समेंट में हमारा आता है स्ट्रेट बार और बेंट अप बार। स्ट्रेट बार का डाया है 12 mm, बेंट अप बार का भी डाया 12 mm है। शेप हमने यहाँ पे शो कर दी है। नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट करे थे 43 मेन रीइंफोर्समेंट थी, जिसमें से हमने 22 मेन बार और 21 बेंट अप बार कैलकुलेट किया है। लेंथ्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टोटल लेंथ कैसे आ जाएगी, नंबर से हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ कैलकुलेटेड इज इन मीटर। नाउ वेट पर मीटर लेंथ, वेट पर मीटर लेंथ का फॉर्मूला क्या था, d² / 162, वेयर d इज़ द डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बार, d
12 square by 162 equals to 0.89. 12 square by 162 equals to 0.89. How we are going to calculate the total weight? Total length multiplied with weight per meter length gives the total weight of that bar. Okay, similarly we are going to calculate for bent up bar. Total length into weight per meter length gives total weight required for bent up bar. Now talking about distribution bars. Distribution bars dia is 10 mm. These are straight bars. Number are 18 plus 4 plus 4. हमने क्या बोला, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारे कितने कैलकुलेट हुए थे 18, और हम क्या बोल रहे हैं बेंट अप बार्स को सपोर्ट करने के लिए हम एडिशनल बार्स प्रोवाइड करते हैं. एडिशनल बार्स हमने कितने कैलकुलेट करे 4, और हम दोनों साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दोनों साइड के लिए 2 बार हम 4 ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो वो टोटल नंबर कितना हो जाता है 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 26 into length equals to total length in meter. Okay, now we are going to calculate weight per meter length. D square by 162, 10 square by 162 equals to 0.62. Okay, now weight per meter length multiplied with total length gives the total weight required for distribution bars. So I hope bar bending schedule for one way slab is clear to you. Thank you for watching.